Hi students. So we were discussing about the teeth and different types of teeth, or we can divide the teeth in different categories on different criteria, like on the basis of the shape and also on the basis of the number of set an individual organism is having in its entire lifetime. So on that basis, we have discussed like monophyodont, polyphyodont, diphyodont, right? Then now I also have discussed about the shape like homodont or heterodont, the last video lecture, and we were discussing about the shape also. So in case of the human being, we have incisors, canine, premolar, and molar. So let us see a diagram. Then we'll move on. Go to the next topic. So let us see the diagram once. So this is better. Yeah. So if you see, this is the diagram of the human dentation, means the teeth what we have and its arrangement, and it is in half jaw. We can see this is the complete jaw. Just let me take the highlighter. Yeah, this is the complete jaw. So if you only consider the half of the jaw, half. Okay, just take the half of the jaw, right? So then you can see this, there is incisors, we have incisors, then we have canines, there are two incisors, then we have canines, then we have two molars, premolars, and we have three molars. So normally this is the count of the adult human being. Okay. So in case of adult human being, we can see that there are incisors, the incisor in number two number. Then they have canines. Then they have then we are having the premolars. Then we have molars. Okay. तो अगर आप ध्यान से देखोगे, if you see it very clearly, so you can find all the teeth have the different shape and size. अलग अलग टीथ का शेप एंड साइज अलग है. देखो इंसिसर का शेप और साइज अलग है, कनाइन का शेप और साइज अलग है, प्रीमोलर का शेप एंड साइज अलग है, वैसे ही मोलर का भी शेप एंड साइज अलग है. So their shape and size are different, so that's why we can call it as heterodont. So in case of us, in case of human being, we have the teeth which is heterodont, means we have teeth of different shape and size, right? So this is one more diagram where you can see this is the mouth or the buccal cavity is in an open format. Okay, so here you can see the upper part, that is the palate. You can see the palate here. Okay, so this is the hard palate area you can see. Then you can see the rest part is a soft palate, right? This is the upper lip. This is the lower lip. Then this is the gum. See, the teeth are actually present in the bones, and the bones are actually covered with this muscular structure that is called gums, right? Then what happens? We have you can see I have already discussed to you, like if somebody opens their mouth, so the things what we can see which is having little bit hanging, थोड़ा लगता है कि hanging है, ठीक है? So this is nothing but the extended part of the soft palate, and this is called uvula. Yesterday I have already discussed, and I have many times I have said that you please correct that spelling. So spelling is this uvula, right? Now this is the pharynx area. I said immediately after the buccal cavity, before the esophagus, what is the area or region present? That is called pharynx. Now the pharynx near to the internal nares is known as nasopharynx. The middle region is known as oropharynx, and the region before the larynx part, that is called laryngopharynx. Right. Now here we can see this is the tongue. We can see the tongue, and here right side and left side you can see this. This is some structure can be visible. This is actually nothing but this is the palatine tonsil, which is visible. The palatine tonsil. Right. Now this is the lingual frenulum. Okay, this is the lingual frenulum. We'll discuss it later when we talk about the tongue. And here you can see there is an opening. This opening is nothing but the duct of submandibular gland. This is a salivary gland where it opens here. There are three different types of pairs of salivary gland. So this is one of the salivary gland, and it is opens through this this area, and that duct through which it opens, it is known as that we'll discuss in detail, not now. So let us only discuss the name of the gland, that is
द ओपनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो यहाँ पे जो ओपनिंग आपको दिख रहा है ये कौन सा ग्लैंड का है, सबमैंडिबुलर का है, ठीक है। सो विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। सो लेट अस फर्स्ट फिनिश द टीथ। Fine. Right. So we have discussed that the human dentation, what we have, that is incisors. We have the teeth, which is heterodont. That means the teeth are having different shape and size. Okay, like incisors, canine, premolar and molar. देखो incisor जो अभी हमने देखा कि इसका मेन फंक्शन जो होता है ना कटिंग होता है। उसके बाद है आपका canine, इसका मेन फंक्शन होता है टीयरिंग। उसके बाद है प्रीमोलर, उसका मेन फंक्शन होता है ग्राइंडिंग। मोलर का भी फंक्शन होता है ग्राइंडिंग, बट मोलर का साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है प्रीमोलर से, ठीक है। प्रीमोलर एंड मोलर का दोनों का फंक्शन इट्स सेम ओनली, बट द साइज इज लिटिल डिफरेंट। देयर इज अ डिफरेंस इन द साइज। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला मतलब हमारे जो मतलब दांतों का जो अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इन आवर जॉ, विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हमने भी डिस्कस किया कि वी आर डाइफायोडोंट आल्सो, मींस इन अ लाइफ टाइम वी एक्चुअली हैव टू सेट ऑफ टीथ। हमारा क्या होता है, हमारा फर्स्ट सेट ऑफ जो टीथ होता है इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, दैट इज द मिल्क टीथ। देन वी हैव द सेकंड सेट ऑफ टीथ दैट इज कॉल्ड योर the final teeth, what we can say, the teeth what we can get in the set of teeth, not teeth, the set of teeth what we can get in the adult stage. So adult stage में हमें जो teeth मिलता है हम उसे बोलते हैं उसे बोलते हैं सेकंड सेट ऑफ टीथ। और फर्स्ट वाला जो जो पहला सेट है मिलता है उसे बोलते हैं मिल्क टीथ और फर्स्ट सेट ऑफ टीथ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, you can have some confusion like यहाँ पे so let us first discuss, then we'll talk about the confusion. Like सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वट एवर वी आर डूइंग इट हियर। सो मैंने वहां पे आपको पिछले डायग्राम में दिखा था हाफ जॉ आपको सोचना है। ऑलवेज यू नीड टू थिंक अबाउट द हाफ जॉ, ठीक है। मतलब क्या है, मान लो कि ये पूरा जॉ है, ठीक है, ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है, मान लेते हैं हम उसको, ठीक है। तो यार अगर ये अपर जॉ है, ठीक है, और ये लोअर जॉ है, तो क्या होगा, अपर जॉ का जो हाफ पार्ट होगा वहां से हम लेंगे। देखो लेफ्ट साइड में अपर जॉ का जो टीथ है उसका ओरिएंटेशन सेम रहेगा, राइट साइड में भी ओरिएंटेशन सेम रहेगा। इसको एक बार देख लेते हैं डायग्राम में, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लेट अस गो टू द डायग्राम। देखिए अगर ये कंप्लीट जॉ है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं हाफ, बिल्कुल बीच में से हमने एक जॉ ले लिया, और अगर हम उसको बीच में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। सो लेट अस मेक अ लाइन एज वेल। मान लो कि यहां से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आप देखो लेफ्ट साइड में जितने टीथ्स हैं राइट साइड में भी उतने ही होंगे, ठीक है। सो लेफ्ट साइड में इंसिसर होगा 2, कनाइन होगा 1, प्रीमोलर होगा 2, मोलर होगा 3। बिल्कुल उसी तरीके से राइट साइड में भी वैसा होगा, इंसिसर होगा 2, कनाइन होगा 1, प्रीमोलर होगा 2 और मोलर होगा 3, ठीक है ना। तो अब काउंट करोगे अगर आप, तो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो एक जॉ के हाफ ऑफ द जॉ, लेफ्ट साइड या राइट साइड, हाफ ऑफ द जॉ में कितना हो रहा है, इट्स हैविंग 8। तो फुल जॉ में कितना होगा, 16। तो फिर दो जॉ में कितना होगा, 32। सो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, डेंटल फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सो लेट अस सी दैट, या लेट्स सी। So you have to draw the diagram in this way, the way I have drawn here, for easy, for the understanding, easy to understand the things in an easy way. ठीक है, तो पहला जो है आपका the first one what we see, the first set of teeth, उसमें क्या होता है, first set of teeth जो होता है और उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, this is nothing but the number of teeth of different kind. हमारे in case of us we have 4 different types of teeth. एक होता है इंसिसर, दूसरा होता है कनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, चौथा होता है मोलर। तो हम क्या लिखे, आप देख सकते हो यहाँ पे we have written 4, we have written the number of teeth and their kinds, their types. तो पहला इंसिसर 2 होता है, वही हमें लिखा है 2। उसके बाद कनाइन कितना होता है, 1 होता है, ये फर्स्ट सेट ऑफ मिल्क टीथ की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद जो प्रीमोलर नहीं होता है, मोलर 2 होता है, ठीक है। ये होता है कंडीशन आपके मिल्क टीथ में।
वैसे फिर से आप ये अपर जॉ में हो गया, ये लोअर जॉ में हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अपर जॉ में ये हाफ में अगर 8 काउंट करेंगे तो कितना है, 2 प्लस 1 प्लस 2, सो हो गया 5, राइट। तो अपर जॉ में हाफ में 5 है, तो फुल जॉ में कितना होगा, बोलिए, 10 होगा ना। तो यहां पे अगर नीचे ये लोअर जॉ है, इसमें कितना होगा, इसमें भी 5 है, ठीक है ना। तो फिर हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आएगा, 20 टीथ आएगा ना। ऊपर में 5 इंटू 2 10, नीचे 5 इंटू 2 10, सो टोटल 20 टीथ। समझ रहे हैं ना आप लोग। हाफ आपका टीथ है, हाफ ऑफ द जॉ है, तो हम उसको, हाफ है मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब पूरा जॉ को कैलकुलेट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब अभी हमने देखा था ना, तो बिल्कुल वैसे ऊपर में 5 है इन केस ऑफ द मिल्क टीथ। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, तो उसमें ऊपर 5 होगा, नीचे 5 होगा, तो 5 इंटू 2, आप बोलोगे 20 कैसे है, तो ऐसे आया, ऊपर में जो 5 है मल्टीप्लाइड विद 2, नीचे वाला 5 मल्टीप्लाइड विद 2, तो कितना हो गया, 10 प्लस 10 कितना हुआ, 20। तो यहाँ कोई वो मैथ वाला डिवीजन वाला कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पे अलग तरह से हम समझते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं डेंटल फॉर्मूला, दिस इज द वे वी राइट, ठीक है। सेकंड सेट ऑफ टीथ में वही सेम होगा, अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि 2 होगा इंसिसर, 1 होगा कैनाइन, 2 होगा प्रीमोलर, 3 होगा मोलर। तो काउंट करोगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8। तो अपर जॉ के हाफ जॉ में, अपर जॉ के हाफ में इतना सारा टीथ है, और सिमिलर हाफ में और रेस्ट ऑफ द हाफ में सिमिलर नंबर ऑफ टीथ होगा, बिल्कुल सेम अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 8 multiplied with 2 in one jaw, then we have 16 teeth in one jaw. Then here also we have 8 into 2, then 16 teeth in the other jaw. So 16 plus 16 will get 32 teeth. ठीक है, so this is the way we calculate. I hope it is clear. Now, अब देखो जो लास्ट मोलर होता है ना, लास्ट मोलर मतलब हमने अभी देखा ना कि 2 मोलर होता है, सॉरी प्रीमोलर 2 होता है और 3 मोलर होता है, हमने अभी देखा ना। तो ये जो मोलर होता है ना, तो मोलर का जो लास्ट वाला पार्ट है, थर्ड मोलर जो एकदम लास्ट में हमारे जॉ में जो रहता है, वो हमेशा एक एज के बाद ही आता है, एक एज के बाद ही वो ग्रो करता है, एंड दैट इज स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 18। तो इसीलिए इसको हमने एक नाम दिया है, इसको हमने कॉमनली हम इसको कहते हैं विजडम टीथ। विजडम मतलब क्या है कि हम जब बड़े हो जाते हैं, हमारा जो विजडम, या हम जिसको बोल सकते हैं हम मैच्योर हो जाते हैं, जिसको जिस स्टेज में आके, तो हम नॉर्मली मानते हैं कि लोग जो ह्यूमन इंसान जो होते हैं वो 18 साल की उम्र के बाद वो लगभग मैच्योर हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। तो उसी एज के बाद ये टीथ जो है लास्ट मोलर ये भी आता है। सो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ इंडिकेशन कि after the 18 years this last molar will come, so that's why the last molar is also known as wisdom teeth, because it is coming at a certain age, so that's why we call it as a wisdom teeth. So last molar is also known as wisdom teeth, which come always after 18 years. ऐसा है कि wisdom teeth किसी को जल्दी भी आ सकता है, किसी को बाद में भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 18 साल हो गया तो तुरंत आ जाएगा। कभी कभी 22 साल में आता है, किसी को 25 साल में आता है, किसी को 26 साल में भी आता है, ऐसा भी होता है, कभी कभी देखा गया है। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि मतलब होता है ना कि आदमी तो एज से बड़ा हो जाता है, लेकिन मैच्योरिटी कब तक आती है कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज विजडम टीथ। तो ऐसा मानना है लोग, मतलब नेचुरली, इट्स नॉट साइंस, इट्स नॉर्मली हम मानते हैं कि जिसको विजडम टीथ आ गया उसको मैच्योरिटी आ गया, ठीक है। चलिए next, now we have discussed about the different types of teeth on the basis of the different criteria. We have categorized the teeth and classified the teeth in different criteria on the basis of different criteria. So third criteria we'll discuss. अभी तक हमने दो criteria discuss किया। पहला है कि लाइफ टाइम में कितना सेट ऑफ टीथ मिलता है, उसके बेसिस में हमने डिवाइड किया है, मोनोफायोडोंट है, डाइफायोडोंट है, पॉलीफायोडोंट है, हमने डिस्कस किया था। अभी क्या है ना, अभी नाउ वी डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ द कस्प। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कस्प क्या है। देखो कस्प मतलब होता है द सरफेस, टीथ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, या जो टीथ का जो फर्स्ट जो एरिया है, सॉरी जो सरफेस है टीथ का, उसको हम बोलते हैं कस्प, ठीक है। तो कस्प के बेसिस में हम, कस्प जो है अलग अलग टीथ का अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग, इट डिपेंड्स ऑन द
पर्टिकुलर एनिमल्स, इट्स फूड हैबिट एंड ऑल. सो on the basis of that उनके जो टीथ का जो शेप होता है, सरफेस का जो शेप होता है कस्प का, वो अलग होता है. तो कस्प क्या है? इट इज नथिंग बट द सरफेस ऑफ द टीथ. तो सरफेस ऑफ द टीथ को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कीनली, मतलब उसको माइक्रोस्कोपिकली अगर हम उसको ठीक से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि उसका जो सरफेस है वो हर टीथ, हर ऑर्गेनिज्म का अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट इट्स आल्सो चेंजेस, अलग अलग होता है. ठीक है, तो वो जो कस्प है उसके बेसिस पे भी हमने डिवाइड किया है टीथ को इन डिफरेंट कैटेगरीज. ठीक है, तो कस्प क्या है? कस्प इज द अपर पार्ट ऑफ द टीथ विच इज विजिबल. हमारा टीथ के ऊपर जो हमें दिखता है ना, टीथ का जो सरफेस है और अपर पार्ट है जो हमें दिखता है, उसे ही कहते हैं कस्प. ठीक है, तो उसका जो डिफरेंट टाइप्स है कस्प के, तो उसके बारे में उसको हम देख लेते हैं. लाइक बूनोडोंट, पहला जो कैटेगरी है बूनोडोंट. सो यहाँ पे कहना है कस्प आर एक्चुअली ब्लंट. तो मैंने डायग्राम भी बनाया है राइट साइड में, हर एक इसके बाद कैटेगरी के बाद, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा. तो कस्प मतलब आप देखो, ये बूनोडोंट मतलब जो दोनों टीथ के बीच में या टीथ के बीच में जो कस्प होते हैं ना, ब्लंट होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली फिक्स हो जाते हैं, ऊपर वाला नीचे के साथ प्रॉपर्ली फिक्स होता है, ब्लंट होता है. यहाँ पे कोई ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होता है. आप देख सकते हो ऊपर वाला नीचे वाले जो अपर एंड लोअर जो टीथ है उनके बीच में कोई ज्यादा शेप में दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. ठीक है, सो ऑलमोस्ट इट्स हैविंग ब्लंट. राइट, एग्जांपल ह्यूमन में ऐसा होता है. सो वी हैव दिस टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमन. नेक्स्ट सिनोडोंट. नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? सिनोडोंट. तो इसमें अगर हम सरफेस को ध्यान से देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सरफेस है वो लिटिल बिट पॉइंटेड होता है इनके टीथ में, ये टीथ में. ठीक है, और ये किसमें ये वाला टीथ हमें मिलेगा? कार्निवोर्स जो होते हैं उनमें मिलेगा. ठीक है, सो जो टीथ होगा उसका सरफेस हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप और प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे, तो उसका जो सरफेस है हमें उसमें क्या दिखेगा? उसमें थोड़े शार्प पॉइंटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, पॉइंटिंग और शार्प स्ट्रक्चर मिलेंगे. उसका एग्जाम्पल क्या है? कार्निवोर्स. ठीक है, नेक्स्ट है सिकोडोंट. ठीक है, नेक्स्ट है सिकोडोंट. अभी देखो सिकोडोंट का थोड़ा यहाँ पे थोड़ा आपको और अच्छे से मैं थोड़ा मतलब क्लैरिटी शायद नहीं है, मैं आपको थोड़ा कोशिश करता हूँ बताने के लिए. देखो क्रिसेंट शेप मतलब थोड़ा सा और बेंड होगा, ऐसा थोड़ा आप थोड़ा और थोड़ा बेंड कर लेना इसको जब बनाओगे. क्रिसेंट मतलब ना हाफ मून शेप ऐसा होता है. ठीक है, ऐसा क्रिसेंट मतलब इसको बोलते हैं क्रिसेंट शेप. एक्चुअली आप मींस मे बी यू पीपल आर नॉट अवेयर और मे बी समवन हु इज हैविंग क्रॉप साइंस उनको पता होगा कि ये जो क्रिसेंट शेप का जो ऐसा ये इंस्ट्रूमेंट होता है ना, द पीपल आर यूजिंग इट to harvest the paddy and also the wheat. नॉर्मली मैकेनिकली जब वीड और इसको हम हार्वेस्ट करते हैं ना, पैडी को हार्वेस्ट करते हैं, तो नॉर्मली उसको हार्वेस्ट करने के लिए हम इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम यूज करते हैं मैकेनिकली, हम जब इसको हार्वेस्ट करते हैं तब. ठीक है, तो ये होता है क्रिसेंट शेप, इसको बोलते हैं क्रिसेंट शेप या हाफ मून शेप. तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो उस टीथ का जो सरफेस होता है ना बिल्कुल क्रिसेंट शेप का होता है, हाफ मून शेप का होता है. ठीक है, और ये देखो हर एक टीथ का ना ये जो शेप है ना, इट्स एक्चुअली टेल अस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फूड हैबिट ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल. तो ये वाला जो है एनिमल, ये जो है ये कौन सा एनिमल का, किस सब के एनिमल का बात कर रहा है? मतलब इससे हम क्या पता कर सकते हैं? क्रिसेंट शेप जो है ना वो ग्रेजिंग एनिमल्स का होता है. क्यों होता है पता है? क्योंकि क्रिसेंट जो अभी मैंने बताया ना, इस तरह के शेप के जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं पैडी या वीट को हार्वेस्ट करने के लिए, तो ये क्रिसेंट शेप के जो टीथ होते हैं ना, मतलब सरफेस में क्रिसेंट शेप का स्ट्रक्चर होता है. तो इससे क्या होता है, जो हार्बीवोर्स होते हैं मतलब जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, स्पेशली काउस, कैटल्स, राइट, स्पेशली द कैटल्स. So what they do now, they it's help them to actually cut the grass or the leafy this leafy plant, the leaves, okay, very easily. तो grazing करने में उनको बहुत easy होता है, and because of the teeth they can cut the grasses very easily. Okay, so grazing animals में हमें ये crescent shape teeth हमें मिलता है. ठीक है, अगर आप किसी गाय का अगर मुंह अगर वो खोल के अगर उनका दांत अगर ऑब्जर्व करोगे, इफ यू सी द टीथ, तो इफ यू टच इट तो आपको पता चलेगा इट इज हैविंग दिस टाइप ऑफ सरफेस दैट इज वेरी शार्प. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज लोफोडोंट. लोफोडोंट मींस इट हैव द रिजेस ऑन द सरफेस.
ठीक है। तो लोफोडोन मतलब बिल्कुल जो डायग्राम मैंने राइट साइड में बनाया है बिल्कुल ऐसे रिजिस टीथ में होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लोफोडोन। और ये वाले दांत जो है ये हमें एलिफेंट्स में मिलता है स्पेशली, ठीक है। एलिफेंट के जो दांत हैं उनके सरफेस में हमें ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखता है, और इसको इस तरह के टीथ को हम कहते हैं लोफोडोट, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ टीथ इज नोन एज लोफोडोट, ठीक है। So that was the criteria on the basis of which we have categorized the teeth in different categories. So now this is the category what we have discussed. It is on the basis of the cusp of the teeth. teeth का जो cusp है उसके basis में भी हमने divide किया, ठीक है। Now next on the basis of the attachment of the teeth. Next criteria क्या है, हम teeth को फिर next criteria क्या है जिसके basis में हमने divide किया है, discuss करेंगे अभी। that is your on the basis of the attachment of the teeth. teeth के attachment के basis पे हमने teeth को divide किया है फिर से, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये हम क्या attachment मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो पॉलीफायोडोंट है, जैसे कि फिशेस है, एम्फीबियंस है, तो मैंने आपको उस समय बताया था कि जो टीथ है उनके फिशेस और एम्फीबियंस के वो if they lost the teeth because it is very superficially attached with the jawbone of their because it is very superficially attached, so whenever they are using it, so they are losing the teeth and again the teeth is coming back. तो यहाँ पे जो टीथ है वो बोन के साथ कैसे अटैच है उसके बेसिस में भी हम टीथ को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। सो द बोन्स इन विच, सबसे पहले तो हमें यह जानना है जो बोन है जिसके साथ मतलब ये टीथ अटैच होते हैं, हम उसको नॉर्मली क्या कहते हैं, द बोन इन विच द टीथ आर एक्चुअली प्लेस्ड दे आर कॉल्ड एल्वियोलार बोन्स। क्या कहते हैं उसे, एल्वियोलार बोन्स। मतलब हमारा जो जॉ बोन है वो मैक्सिला भी हो सकता है, मैंडिबल भी हो सकता है, मतलब अपर जॉ और लोअर जॉ जो हमारा है जिसमें मतलब टीथ कहां पे अटैच होते हैं, हमारे जॉ में अटैच होता है ना, तो जॉ इज मेड अप ऑफ सम बोन, राइट। सो द बोन विच इज एक्चुअली with which the teeth is getting attached, that bone or that is actually those bones are actually known as alveolar bone. सबसे पहले हमें तो ये क्लियर होना चाहिए। Now next we'll discuss that on the basis of the attachment, the way the teeth is getting attached with the alveolar bone, ठीक है। alveolar bone क्या है वो क्लियर है ना, जिस बोन के साथ हमारा जो टीथ जो है वो अटैच रहता है उसको हम बोलते हैं alveolar bone, ठीक है। अब किस तरह से अटैच रहता है उसके बेसिस में हमने डिवाइड किया। तो पहला कैटेगरी है एक्रोडोन। एक्रोडोन का मतलब होता है कि देखो जो टीथ होता है ना वो अगर बोन के साथ, जॉ बोन के साथ, एल्वियोलार बोन के साथ सुपरफिशियली अटैच्ड है, सुपरफिशियली मतलब जस्ट बोन के साथ उसके सरफेस के ऊपर अटैच्ड है, उसको बोलते हैं सुपरफिशियली, ठीक है। डीप इनसाइड कोई सॉकेट बना नहीं है, कोई ऐसा अलग स्ट्रक्चर नहीं है, बॉल मतलब होता है ना कि सॉकेट बना है उसके अंदर टीथ डीप इनसाइड द सॉकेट द टीथ इज प्लेस्ड प्रॉपर्ली एंड गेट अटैच्ड विद द बोन प्रॉपर्ली, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सरफेस के ऊपर, बोन की सरफेस के ऊपर सुपरफिशियली अटैच होता है। अगर ऐसा कंडीशन है तो उस तरह के टीथ को हम बोलते हैं, और जो जिनके पास इस तरह का कंडीशन है और जिस एनिमल में हमें ऐसा दिखता है हम उसे बोलते हैं एक्रोडोट, ठीक है। सो इन केस ऑफ द एक्रोडोन, इन दिस केस व्हाट वी कैन सी, इन दिस केस द अटैचमेंट ऑफ द टीथ इज सुपरफिशियल, दैट इज व्हाई दे फॉल ऑफ वेरी इजीली। मैंने अभी बताया, हमने पहले भी डिस्कस किया, इसीलिए बहुत जल्दी वो गिर जाते हैं दांत, लेकिन फिर बाद में बन भी उनको मिल भी जाता है, फिर बन भी जाते हैं, ठीक है, फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। और वो होता है कि इसमें एग्जांपल क्या है, फिशेस एंड एम्फीबियंस, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट क्या है, देखो इन दिस द बोन इज हैविंग सॉकेट। अभी मैंने बात किया था ना कि सॉकेट है कि नहीं बोन में, पहले तो मतलब एक्रोडोन में तो नहीं होता है लेकिन प्लूरोडोन में होता है, लेकिन सॉकेट तो होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो टीथ है it is not attached or it is not using the entire socket properly, ठीक है। तो जो टीथ होता है ना वो सॉकेट के किसी एक तरफ पार्शियली अटैच होता है, प्रॉपरली जो पूरे सॉकेट को यूज करके स्ट्रांगली अटैच नहीं होता है, ठीक है। सो दे आर नॉट अटैच्ड वेरी टाइटली एंड स्ट्रांगली, ओके। सो इन दिस बोन, लाइक इन केस ऑफ द प्लूरोडोन, it is the bone is having a socket and the teeth is attached in that socket partially in one side, and that is the attachment
is not and that attachment is not यहाँ पे द जो अटैचमेंट होता है वो टाइट नहीं होता, सो द अटैचमेंट इज नॉट टाइट, ओके, एंड कैन बी सीन इन केस ऑफ रेप्टाइल्स एक्सक्लूडिंग क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स, ठीक है। तो इस तरह के दांत जो मतलब जॉ बोन में सॉकेट तो है, लेकिन जो दांत है, जो आपका जो टीथ है, इट इज अटैच ओनली इन वन साइड, ठीक है। पूरे सॉकेट को यूज करके स्ट्रांगली टाइटली अटैच्ड नहीं होता है, it is only attached in one side loosely, and this type of attachment, if the teeth are attached in this way with the alveolar bone or the jaw bone, then we call them as pleurodont। फिर क्या कहते हैं उसे? प्लूरोडोंट कहते हैं, ठीक है, प्लूरोडोंट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? रेप्टाइल्स, उसमें एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट इज थीकोडोन। थीकोडोन में क्या है ना, इसमें प्रॉपर सॉकेट होगा, और प्रॉपर सॉकेट के साथ क्या होगा, प्रॉपर जो टीथ है वो सॉकेट को प्रॉपरली कंप्लीटली यूज करके टाइटली अटैच होता है बोन के साथ, ठीक है। इस तरह के कंडीशन को, इस तरह के डेंटेशन को हम कहते हैं थीकोडोन, ठीक है। सो एल्वियोलार बोन्स विच in which the teeth are attached have socket, and these sockets are known as alveoli। तो जो सॉकेट्स होता है जिसमें जो टीथ है वो अटैच होता है उसको बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। और उसके साथ जो टीथ होता है वो कंप्लीटली टाइटली अटैच्ड होता है, ठीक है। सो द थीकोडोन डेंटेशन, इन द थीकोडोन डेंटेशन द टीथ इज प्रॉपर्ली अटैच्ड विद द सॉकेट, पार्शियली नहीं है, किसी एक साइड में नहीं है, प्रॉपर्ली अटैच्ड होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड थीकोडोन, ठीक है। एंड द अटैचमेंट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक बार दिखाना चाहता हूं, तो आपको थोड़ा और भी क्लैरिटी आ जाएगा। सो द डायग्राम इज नॉट दैट गुड, जस्ट आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आप थोड़ा समझ जाइए, क्योंकि आपने ये देखा भी होगा बहुत बार, ठीक है। कॉलगेट के एडवर्टाइजमेंट में बहुत दिखाता है ये। तो जो दांत है हमारा वो बिल्कुल सॉकेट के साथ कंप्लीटली, ये मान लो ये रेड में मैंने जो बनाया, दिस इज द सॉकेट एंड दिस इज द टीथ, सो इट इज अटैच्ड कंप्लीटली, इट इज यूजिंग द कंप्लीट सॉकेट, एंड दिस सॉकेट, ये जो बोन है रेड में मैंने जो बनाया, दैट इज द एल्वियोलर बोन, ठीक है। तो ये सॉकेट है, तो सॉकेट के सॉकेट का, जिस सॉकेट को हम बोलते हैं एल्वियोलाई, बोन को बोलते हैं एल्वियोलर बोन और सॉकेट को बोलते हैं एल्वियोलाई। इसमें जो टीथ है वो कंप्लीटली देखो डिप्ड इन एंड इट्स कंप्लीटली टाइटली अटैच्ड, पार्शियली नहीं। ऐसा अगर होता है तो हम उसे बोलते हैं थीकोडोन। तो ये ह्यूमन के केस में हमारा ये कंडीशन है, हमारा टीथ ऐसे ही अटैच होता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अच्छा एग्जाम्पल, ह्यूमंस में ऐसा होता है, क्रोकोडाइल्स में ऐसा होता है, एलिगेटर्स में ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो ह्यूमन डेंटेशन, अगर हम अभी हमने क्या किया, हमने बहुत सारा क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया, जिसके बेसिस में हमने जो टीथ है उसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया, शेप, साइज, उसके बाद अटैचमेंट विद द बोन, ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम, द नंबर ऑफ सेट्स इन अ लाइफ टाइम इट इज गेटिंग, देन ऑन द बेसिस ऑफ द कस्प, है ना, हमने डिवाइड किया था। तो ह्यूमन डेंटेशन को अगर हम बोले, अभी हम बताएंगे कि ह्यूमन डेंटेशन क्या है, कैसा है, तो हम क्या बता सकते हैं, दैट ह्यूमन डेंटेशन इज डाइफायोडोंट, हेट्रोडोंट, बुनोडोंट एंड थीकोडोंट, ठीक है। तो डाइफायोडोंट मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेट वी आर गेटिंग इन अ लाइफ टाइम, दैट इज 2, दैट इज व्हाई डाइफायोडोंट। हेट्रोडोंट मतलब जो उसका मतलब शेप है टीथ का, अलग अलग टीथ का अलग अलग शेप होता है, साइज होता है, तो इसीलिए हमारा जो डेंटेशन है वो हेट्रोडोंट है। और बुनोडोंट का मतलब होता है कस्प के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है, थीकोडोंट का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द अटैचमेंट, ठीक है। सो दैट इज द, इफ यू से इट द समरी in a just in if you have to say that what is the human dentation, so we can say it very easily, that is the human dentation is diphylodont, heterodont, monodont and thecodont, ठीक है। Now next there are certain terms we'll discuss before we move on, and certain other information we'll discuss before we move on to the next topic, that is the structure of tooth। तो structure of tooth पढ़ने से पहले दो एक पॉइंट पर जान लेते हैं। एक है डायस्टेमा, ठीक है। डायस्टेमा क्या होता है? Diastema, it is actually a gap between the teeth.
दांतों के बीच में जो गैप होता है ना, मतलब हमारे जो जैसे अभी हमारे कितने दांत हैं, हमारे पास इंसिसर्स है, कैनाइन्स है, प्रीमोलर्स है, मोलर्स है। तो एक दांत से दूसरे दांत के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो गैप होता है, मतलब वो हमें ऐसे विजिबल नहीं होगा, बहुत ही कम गैप होता है, लेकिन उस गैप को ही हम कहते हैं डायस्टेमा। क्या कहते हैं हम उसे? डायस्टेमा। ठीक है। नाउ इन केस ऑफ रैबिट द इंसिसर्स आर वेल डेवलप्ड। रैबिट के केस में इंसिसर्स जो होता है ना वो वेल डेवलप होते हैं, बिकॉज दे कट देयर फूड and they are herbivores. They do not like eat flesh, and that is why the canines are absent. तो रैबिट के केस में अगर आप देखोगे तो आप देखना कि उनका जो डेंटेशन होता है, if you observe it clearly, तो हमें क्या मिलेगा रैबिट के केस में? We can see that they are having that incisors which are very well developed. Why? Because they're using it for cutting the food, because they're herbivores basically. Because they're herbivores, उनका canines होता ही नहीं है, absent होता है। लेकिन अगर आप अपने हमारे केस में देखोगे, ह्यूमन के केस में देखोगे, तो we have canines। ठीक है। तो what it indicates that we also can eat flesh। ठीक है। तो हमारे ancestors जो थे they used to eat flesh। तो हम फ्लेश खाने वाले, या उसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी हमें होती है। तो अभी आप क्योंकि डाइजेशन पढ़ रहे हो, तो मैं आपको अभी आने वाले मतलब टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे, आने वाले लेक्चर में भी। तो अभी मैं बताता हूं आपको कि द ह्यूमन बीइंग एक्चुअली हैव द मैक्सिमम, वी प्रोड्यूस और secrete a maximum number of enzyme compared to other animals। ठीक है। क्यों? Because we are omnivores। We can eat vegetables and we can also eat flesh and we can survive, we will not die। ठीक है। So because I have started this topic, so I will discuss few more points regarding this and then we will move on। तो क्योंकि हमने स्टार्ट किया है तो आप थोड़ा सुन लो उसके बारे में, बहुत अच्छी जरूरी है ये, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ने ही वाले हैं इसको। देखिए, इफ यू सी इट वेरी केयरफुली एंड इफ यू ऑब्जर्व इट प्रॉपर्ली, तो आप देख सकते हो कि आप जान, आपको भी पता चल जाएगा हम जितना भी पढ़ेंगे आगे, कि इंसान जो होता है ना, ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, वी कैन डाइजेस्ट, वी हैव दी during the course of evolution we have evolved in such a way that we secrete the maximum number of enzyme to digest the different types of the food materials available in the environment। ठीक है। हम मैक्सिमम तरह के जो फूड मटेरियल्स है उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। हम फ्लेश को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम फैट को भी कर सकते हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स को भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स है ना, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। है, ठीक है। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, जो हार्बीवोर्स होते हैं ना, जो कैटल्स होते हैं, they can only eat they can only eat the green this plant products, okay, and the plant only। They cannot take flesh, they cannot digest flesh। If they take the flesh, it will have a negative effect, and I will discuss that in the later next video lecture, other video lectures, right? Like other case, like we all take milk in our adult stage। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप दूसरे एनिमल्स देखोगे ना, कोई भी एनिमल्स ले लोगे, जैसे आप काऊ ले लो, या आप कोई भी कार्निवोर्स को ले लो, डॉग ले लो, कैट ले लो, टाइगर को ले लो, तो आप देखना ये सारे एनिमल्स अपने जो ग्रोइंग स्टेज होता है उनका, जब व्हेन दे आर in a very early stage, when they depends on the mother's milk, at that time they have the capacity to digest the milk। ठीक है। मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझना है आपको। मैक्सिमम जो एनिमल्स है वो अपने एडल्ट स्टेज में मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम इंसान कर सकते हैं। देखो, हम बचपन में भी दूध पीते थे ना, देखो अभी भी हम बड़े होने के बाद हम अपने एडल्ट स्टेज में भी हम दूध पी सकते हैं। लेकिन आप किसी डॉग को या टाइगर को अगर आप दूध दे दो, if they drink it also they cannot digest, because they do not have that enzyme। They only have the enzyme during that period of time when they were kid, when they are small, okay। So during the adult stage, after they achieve the adult stage, they cannot digest the milk, but we can digest it। लेकिन हमारे में भी प्रॉब्लम होता है कब? जब हमारा एज हो जाता है। So during the course of means when someone is become very aged, उस समय क्या होता है, हमारा जो मिल्क जो है डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारे पास एंजाइम्स हैं
वो हमारा हम उतना अच्छे से सीक्रेट नहीं कर पाते हैं, तो हमारा जो मिल्क है हम अगर कंज्यूम करेंगे तो उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसीलिए आप देखना जो ओल्ड पीपल है ना, उनको मिल्क लेना या डॉक्टर उनको मिल्क लेने के लिए, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स लेने के लिए मना करते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव द लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, लैक्टोज जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते इसीलिए। ठीक है, चलो वो हम आगे फिर और डिस्कस करेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड लेट अस ट्राई टू फिनिश इट in today's lecture. Next we'll discuss the structure of tooth. अभी हम एक दांत है उसका जो बेसिकली हमारा जो टूथ है, सो वो दांत जो है हम एक दांत को हम देखेंगे, मतलब हमारे जो दांत है वो एक्चुअली हमारे उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारे गम के साथ या हमारे जो एल्वियोलर बोन है उसके साथ ये अटैच कैसे रहता है, ये अटैच कैसे होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, सो टूथ इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स बेसिकली। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट। टूथ को अगर हम बाहर से देखेंगे तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में बेसिकली। पहला है क्राउन, दूसरा है द पार्ट विच इज हिडन अंडरनीथ द गम, और तीसरा होता है आपका जो अंदर होता है। ठीक है, जो गम के अंदर होता है उसको बोलते हैं नेक रीजन, एंड द पार्ट विच इज एम्बेडेड इनसाइड द बोन इज नोन एज रूट। मतलब जो एल्वियोलर बोन, मतलब एल्वियोलाई के अंदर डीप जो रहता है, जो एम्बेडेड रहता है, जो पार्ट डीप का, उसको बोलते हैं वी कॉल इट एज रूट। तो अपर पार्ट जो है विजिबल होता है उसको हम बोलते हैं क्राउन, गम के अंदर जो पार्ट रह जाता है जो हमें दिखता नहीं ऊपर में उसको हम बोलते हैं नेक, और बाकी जो एल्वियोलाई के अंदर जो डीपली रहता है उसको हम बोलते हैं रूट। ठीक है, सो इतना क्लियर है। चलिए नाउ, so the diagram, handmade diagram is very important, so I have drawn it for you, so you also need to draw this. So पहले हम बात करेंगे कि डायग्राम को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, जस्ट हैव अ लुक, ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाए, थोड़ा समझ जाओ आप। या देन वी विल डिस्कस। या अब देखो, हमने अभी क्या बोला कि जो विजिबल पार्ट है, ठीक है, ये जो विजिबल पार्ट है आप देख सकते हो दांत का, इसको हम बोलते हैं क्राउन। और सबसे पहले तो आपको समझना है ये जो हमने बनाया यहाँ पे ब्लैक कलर में मैंने शेड किया है, शेडेड एरिया दैट इज एल्वियोलर, दिस इज द बोन एक्चुअली, जॉ बोन। और आप देख सकते हो क्लियरली जॉ बोन में ये सॉकेट है, कैन यू सी दिस, दिस इज द सॉकेट, राइट। तो यहाँ से जो है टीथ आपको इतना पार्ट दिख रहा है, जो दिख रहा है उसको हम बोलते हैं क्राउन पार्ट। जो गम के अंदर है एल्वियोलर बोल के, मतलब सॉकेट में नहीं है, लेकिन जो गम ने जिसको मतलब बिकॉज ऑफ द गम वी कैन नॉट सी इट प्रॉपर्ली, सो दैट पार्ट इज कॉल्ड नेक रीजन। उसके बाद जो पार्ट सॉकेट के अंदर है, बाकी का जो पूरा पार्ट आफ्टर द गम पार्ट, आफ्टर द नेक पार्ट, नेक रीजन, द एंटायर पार्ट व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉकेट, दैट इज कॉल्ड रूट पार्ट। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड करके देखो, दिस इज द रूट, मैंने यहाँ पे बताया है ये आपका नेक, और ये वाला पार्ट जो अंदर, सॉरी ये ऊपर वाला है क्राउन, और ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं नेक। इतना आपको क्लियर है? चलिए नाउ फर्स्ट we'll discuss this in detail one by one, all the points we'll discuss in detail, and we'll go a little slow because this is very important. Okay, now first is enamel. देखो इनामेल जो है आप सबको पता है, आपने बहुत बार सुना भी है उसके बारे में। इनामेल जो है ना, इट्स द आउटर मोस्ट लेयर और द कवरिंग ऑफ द टीथ। टीथ का जो एकदम बाहरी जो कवर होता है, जो कोट होता है, वो जो है वो इनामेल से बनता है। लेट मी टेल यू, इनामेल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, the toughest, so you know like the hardest substance बोलना चाहिए in human body। हमारे बॉडी में सबसे अगर हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो वो क्या है? इनामेल है। ठीक है, आपने कभी बहुत समय आप टीवी में बहुत ऐड देता है, आपने देखा भी होगा, सेंसोडाइन बोल के एक टूथपेस्ट का ऐड आता है, उसमें कहते हैं कि इफ समवन इज हैविंग सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी क्या है? देखो अभी आपको समझ में आएगा कि हमारा जो टीथ है ना, उसका जो फर्स्ट लेयर है वो इनामेल है, उसके बाद दूसरा जो लेयर है उसको बोलते हैं डेंटाइन। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये फर्स्ट लेयर somehow if someone lose the enamel, then because जो इनामेल होता है वो बहुत हार्ड होता है और ये पोरस नहीं होता। ठीक है, लेकिन डेंटाइन जो होता है ना, वो कंपैरेटिवली कम हार्ड होता है, कम स्ट्रांग होता है, और ये पोरस भी होता है, इसमें पोर्स होते हैं।
और अंदर में जो होता है रूट पार्ट जो होता है उसमें ना आप देख सकते हो, यू कैन सी देयर इज अ पल्प कैविटी, मतलब हमारे दांतों के अंदर जो होता है ना वो हॉलो होता है। our teeth are inside our the teeth inside it is hollow। क्यों होता है hollow? क्योंकि उसके अंदर जैसे हमारे बोन हमने पढ़ा था ना, बोन मैरो जो था, बोन के अंदर वाला पार्ट hollow होता है, बिल्कुल दांत में भी हमारा जो इनर पार्ट है टीथ टूथ का वो क्या होता है, इट इज hollow। and there we have the living cells, nerves all are present inside that hollow area। ठीक है, because यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, आप यहाँ पे अभी हम आगे और पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे इनसाइड द रूट वी कैन सी देयर आर सेल्स, लिविंग सेल्स आर देयर। अब देखो लिविंग सेल्स होंगे तो उनको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, ब्लड सप्लाई चाहिए, नर्व जो है वो भी यहाँ पे रहता है, फिर ब्लड वेसल्स भी रहते हैं। ठीक है, और ये जो सेल है यहाँ पे, ये सेल इसको बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, तो दिस सेल्स आर प्रेजेंट हियर एज वेल। ठीक है, तो क्योंकि अगर इनामेल चला गया और क्योंकि डेंटाइन पोरस है, तो हम जब कुछ ठंडा या गर्म पीते हैं तो दैट टेम्परेचर इज एक्चुअली पेनिट्रेटिंग इनसाइड दिस एरिया। ठीक है, तो जहां पे लिविंग सेल्स है, यहाँ पे वेसल्स है, यहाँ पे नर्व टिश्यू, आपके नर्व्स भी है, सो बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज फीलिंग द सेंसिटिविटी। तो ये इनामल अगर रहेगा तो हम क्या है, ये अंदर तक वो जो सेंसेशन है नहीं पहुंच पाता। ठीक है, पल्प कैविटी तक। ठीक है, तो इसीलिए सेंसेशन हमें नहीं पता चलता अगर हमारे पास इनामल प्रॉपर है तो। ठीक है, सो दैट इज द रीजन ऑफ सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे हम फिर वापस और डिस्कस करते हैं डिटेल में। एक तो पहला है आउटर मोस्ट लेयर, इसको हम बोलते हैं इनामल। उसके बाद वाला जो लेयर इसको हम बोलते हैं डेंटाइन। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मैं आपको बस डिफरेंट पार्ट्स अभी यहाँ पे डिस्कस करके दिखा देता हूँ आज। ठीक है, विल डिस्कस ओनली द पार्ट्स ऑफ द teeth। We will discuss each and every part and other things in detail in the next video lecture। Okay, so first is the enamel. You can see the first layer is the enamel. The second we can see this is the dentine. Then we can see these are the gum which is covering the neck region. Then we can see that then inside the teeth we are having this living cells which are present, and inside the teeth this is a hollow structure, this is the hollow part, and in this area we are having these cells which these cells are called odontoblast cells। now अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो टीथ का जो रूट पार्ट है ना, उसके दोनों साइड से जहां पे ये जो हॉलो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी। जो हॉलो है टीथ के अंदर इसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी। ठीक है, और ये पल्प कैविटी जो है इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स। ठीक है, इसको बोलते हैं पल्प कैविटी एंड दिस इज लिविंग। यहाँ पे जो सेल्स है, यहाँ पे जो भी ये सब लिविंग है, लेकिन इनामेल डेंटाइन इज जस्ट लाइक बोन के जैसे ही हार्ड होते हैं, दे आर नॉट हैविंग एनी लिविंग सेल and they are not made up of any living cell, right? Now if you see very carefully, then you can see there is a socket, and the socket is having a layer, and that is called periodontal membrane। this is called periodontal membrane, and I have drawn immediately the periodontal membrane is drawn in black, and I have shaded it in black, little bit in dark, थोड़ा मोटा मैंने थिक बनाया है, देखो that is your periodontal membrane। and immediately periodontal membrane you can see there is a red, I have drawn it in the red color। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे शेड किया है रेड कलर से, यहाँ पे भी इमीडिएटली आफ्टर द पेरिडोंटल मेम्ब्रेन वी हैव द सीमेंटिंग लेयर। ठीक है, सो दिस सीमेंटिंग लेयर इज एक्चुअली हेल्पिंग द टीथ टू गेट अटैच्ड वेरी टाइटली विद द सॉकेट। ठीक है, एक तो पेरिडोंटल मेम्ब्रेन होता है जो कि सॉकेट की तरफ होता है, उसके बाद सीमेंटिंग लेयर होता है व्हिच इज अटैच्ड, व्हिच हेल्प द टीथ टू गेट अटैच्ड विद द एल्वियोलाई वेरी टाइटली। ठीक है, और ये जो आपका पल्प कैविटी हमने बात किया, जो टूथ जो होता है अंदर से वो क्या होता है, हॉलो होता है, जिसके अंदर लिविंग सेल्स रहते हैं और नर्व्स, ब्लड वेसल्स वो सब रहते हैं, बिकॉज इट्स लिविंग एंड इट इज आल्सो पोरस। तो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से यहाँ पे आपको नॉट पोरस एक्चुअली पोर होता है यहाँ पे, जहाँ की ये ब्लड वेसल्स और जो सप्लाईज है वो यहाँ से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और ये जो ओपनिंग्स है, ठीक है, टीथ के रूट पार्ट में दो साइड में, दोनों पार्ट इधर और इधर, इसको हम बोलते हैं एपिकल फोरामेन, दैट इज नोन एज एपिकल फोरामेन। ठीक है, सो टुडे विल डिस्कस दिस मच। सो द नेक्स्ट क्लास, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, so it will and level it properly, you can pause and you can draw the diagram and level it properly, so that we can start in the next video lecture, we can discuss the things in detail straight away, right? So till then, take care, thank you, stay at home, be safe, bye.